students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 11 students, and today I am going to take the further part from the chapter trial balance. So students, in my last video I explained you the format of trial balance and the method of preparing trial balance in the first video of trial balance, and then in the next video I explained you the redrafting of trial balance. Redrafting, that means making it again, although the trial balance is given in the question, but it is given wrong, or we can say some amounts are written on the wrong side. So we have redrafted that by writing them in the correct side. Okay, so that was redrafting, that means correcting the wrong trial balance. वहां तक हम कर चुके हैं. Now today's topic is again redrafting, but it is related to certain adjustments or you can say additional information given below the trial balance. यानी आपके क्वेश्चन में sometime they give you the additional information जिसको हम adjustments भी बोलते हैं. So adjustments को हम कैसे डील करेंगे और कैसे उसको इफेक्ट उसका ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे, today I will discuss that. So students, without wasting time, let's start. Here the trial balance is given and it is correct trial balance. So that means you have to check first कि आपका जो ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, it is correct or not. Okay. So in this three types of question can come. One is they will give you the wrong trial balance. Okay. यानी wrong दिया हुआ है, आप पहले उसको correct करेंगे. Okay. उसके बाद इन adjustments को उसमें accounting treatment उनका दिखाएंगे. Or sometime it can be only the ledger balances are given. यानी without the format they will give you the balances कि capital is 2 lakh, debtors are this much, creditors are this much. तो आप उसको क्या लिखेंगे, correct side में show करेंगे. So you will prepare the trial balance from the balances given. Okay. और उसके बाद इनका treatment दिखाएंगे जो adjustments दिए हुए हैं. और दूसरा method, the third method is कि जिसमें आपको correct trial balance is already given. Okay, so correct trial balance is given and then you will treat how to do the adjustment or the treatment of adjustment in the trial balance. तो हम आज ये वाला पार्ट ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर. अगर आपको रॉन्ग ट्रायल बैलेंस दिया आप उसको करेक्ट कर लेंगे पहले, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था. और अगर आपको लेजर बैलेंसेस दिए तो आप उससे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, विच आई हैव टोल्ड इन माय फर्स्ट वीडियो ऑफ ट्रायल बैलेंस. ओके, सो दैट पार्ट ऑलरेडी डन. अब हम आते हैं कि हमको ट्रायल बैलेंस जो करेक्टली दिया हुआ है उसके अंदर ये वाली एडजस्टमेंट्स को कैसे डील करेंगे. सो जस्ट सी, व्हीकल 2 lakh 2000, कैपिटल 13 lakh, इट इज गिवन इन क्रेडिट ओनली. बैंक लोन 12 lakh क्रेडिट, परचेजेस 12 lakh 40 इन द डेबिट, क्रेडिटर्स 12 lakh 82,000 इन द क्रेडिट, डेटर्स 12 lakh इन द डेबिट, सेल्स 14 lakh 60,000 in the credit, cash 11 lakh 70,000 in the debit, insurance 1 lakh 88,000 in the debit only, bank loan interest 1 lakh 40,000. अब बैंक लोन जो होता है वो क्रेडिट में आता है और उसका जो इंटरेस्ट होता है वो डेबिट में आता है. रीजन इज लोन इज अ लायबिलिटी, सो इट विल बी शोन इन क्रेडिट. एंड बैंक इंटरेस्ट यानी जो इंटरेस्ट लगा रहे हैं हम लोन के ऊपर वो हम पे कर रहे हैं, सो इट इज एन एक्सपेंस, सो इट विल बी शोन इन डेबिट. आई थिंक क्लियर है. यानी लोन का जो इंटरेस्ट है वो डेबिट में आएगा और लोन का अमाउंट आपका क्रेडिट में आएगा. तो ये हमेशा याद रखेंगे, ये एक न्यू कंसेप्ट था, दैट व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. देन अदर एक्सपेंसेस अगर कोई दिए हुए हैं तो 6 lakh 2, वो भी डेबिट में ही है. प्लांट एंड मशीनरी 5 lakh, दैट इज ऑल्सो इन डेबिट. एंड द टोटल इज कमिंग 52 lakh 42,000. ओके, so the total is coming on both the sides same. Now what adjustments are given or additional information is given कि on 31st March these transaction took place. Bought goods for rupees 1 lakh, half on credit. यानी हमने 1 लाख की गुड्स खरीदी बिजनेस के लिए, जिसमें से हाफ जो थी वो क्रेडिट थी, उधार पे थी. क्लियर है. इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा, एक तो परचेजेस में आएगा क्योंकि परचेज करी है हमने, और दूसरा कैश में आएगा क्योंकि कैश पेमेंट करी है, और क्रेडिटर्स में आएगा क्योंकि हमने क्रेडिट परचेज भी करी है. तो 3 जगह इफेक्ट आ गया इसका. सोल्ड गुड्स जो है रुपीज 1,60,000, हाफ ऑन क्रेडिट. 1,60,000 की गुड्स हमने सोल्ड आउट करी, उसमें से हाफ क्रेडिट में है. अब इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा, एक तो कैश पे आएगा क्योंकि हमें कैश रिसीव हो रहा है हाफ वाला. हाफ अमाउंट जो है वो डेटर्स को इंक्रीज करेगा क्योंकि डेटर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने क्रेडिट सेल करी है. और अल्टीमेट इफेक्ट सेल्स पे आएगा क्योंकि सेल्स हमारी बढ़ गई या सेल्स इंक्रीज हो गई. क्लियर है ना. सो 3 जगह इसका भी इफेक्ट आएगा. देन कम्स पेड वेजेस रुपीज 15,000 टू द असिस्टेंट.
अगर 15,000 वेजेस हमने और पे करी हैं तो वो भी हमारी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, और अगर कोई वेजेस का हेड होगा तो उसके अंदर हम उसको दिखा देंगे। क्लियर है ना? और कैश पे भी इसका इफेक्ट आएगा क्योंकि कैश भी बिजनेस से कम हुआ है, तो इसका इफेक्ट दो जगह आएगा, एक तो एक्सपेंस, जिस एक्सपेंस में आप उसको दिखा रहे हैं, और दूसरा आपका कहा कैश में। आई थिंक ये मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम जल्दी से इसको फॉर्मेट में डील कर लेते हैं, हाउ वी विल ट्रीट इट इन द ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट। सो इट इज ऑल्सो रीड्राफ्टिंग, यानी हम दोबारा बना रहे हैं। ट्रायल बैलेंस इज ऑलरेडी गिवन, वी आर मेकिंग इट अगेन। सो अगेन द डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रायल बैलेंस एज एट 31st March 2020। क्लियर हो गया? हेड ऑफ द अकाउंट, अमाउंट ऑफ डेबिट, अमाउंट ऑफ क्रेडिट, यानी डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब हम लेते हैं पहले व्हीकल। व्हीकल का सेम अमाउंट वी विल कॉपी बिकॉज नो चेंज इज देयर, दैट मीन्स नो एडजस्टमेंट इज देयर रिलेटेड टू व्हीकल। तो आपका 2,02,000 कम डायरेक्टली। कैपिटल, नो ट्रीटमेंट और नो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैपिटल, कैपिटल एज इट इज 13 लाख आ जाएगी। बैंक लोन, no adjustment is related to bank loan, it will come as it is 12 lakh in the credit only, लोन हमेशा क्रेडिट में ही आता है। अब आता है हमारा फोर्थ हेड, दैट इज परचेजेस। अब परचेजेस को ये इफेक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास गुड्स और परचेज हो गई, ठीक है। सो अब गुड्स जो और परचेज हुई है वो आपकी कितने की है? 1 लाख की। ओके, सो 1 लाख आप क्या करेंगे? परचेजेस में ऐड करेंगे, क्योंकि हमारी जो परचेजेस है वो इंक्रीज हो रही है इन द बिजनेस। बिजनेस में परचेज बढ़ रही है तो 1 लाख का आपका इंक्रीज हो जाएगा। सो परचेजेस के अंदर आप 1 लाख ऐड कर देंगे। सो द परचेजेस जो पहले 12,40,000 की थी, आपने इसको कैसे दिखाना है? देखिए यहाँ ब्रैकेट में दिखाना है। 12,40,000 प्लस 1 लाख ऑफ परचेजेस, 13,40,000। देन कम्स द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपके 12,82,000 के थे, अब इसमें 50,000 के क्रेडिटर्स और बढ़ गए। वाई? क्योंकि उन्होंने बोला 1 लाख की गुड्स हमने जो खरीदी उसमें से हाफ जो थी वो क्रेडिट पे थी, तो हाफ के क्रेडिटर हमें बाद में पे करने हैं, तो क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज। जब भी हम क्रेडिट परचेज करते हैं हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, तो हमने 50,000 से क्रेडिटर बढ़ा दिए। सो 12,82,000 प्लस 50,000 दैट इज 13,32,000। क्लियर हो गया ये? फिर आता है हमारा डेटर्स। सॉरी, डेटर्स हमारे दिए हुए 12 लाख। अब हमारी यहाँ पर सेल भी हो रही है और उसमें क्रेडिट सेल भी हो रही है। डेटर्स कब बढ़ते हैं हमारे? जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, दैट मीन्स व्हेन वी सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट। तो आपके जब डेटर्स के अंदर कितना अमाउंट बढ़ेगा? क्योंकि हाफ वॉज क्रेडिट, फुल अमाउंट ऑफ सेल वॉज देयर, दैट इज 1,60,000, 1,60,000 रुपए। उसमें से हाफ क्रेडिट था, तो हाफ से हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। तो दैट मीन्स 1,60,000 का हाफ कितना है? 80,000। So you will write debtors 12 lakh plus 80,000 जो हाफ सेल के डेटर्स है, तो हमारा टोटल अमाउंट हो गया 12,80,000। ओके, 12,80,000। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। आप इसको यहीं पर नीचे शो कर सकते हैं। देन कम्स द सेल। अब हमारी जो सेल बढ़ी है वो कितने से बढ़ी है? 1,60,000 से। तो हमारी सेल पहले थी 14,60,000, अब उसमें 1,60,000 और इंक्रीज हो गई, तो हमारी सेल हो गई 16,20,000। क्लियर है? सेल हमारी पूरे से बढ़ेगी, डेटर्स हमारे हाफ से बढ़ेंगे और कैश हमारा हाफ से बढ़ेगा। क्लियर है ना? सेल के टाइम पे। और परचेज के टाइम पे क्या होगा? परचेजेस फुल अमाउंट से इंक्रीज होगा, और जो हमारे क्रेडिटर्स है वो हाफ से इंक्रीज होंगे, और जो हमारा कैश है वो हाफ से डिक्रीज होगा क्योंकि हम पेमेंट करते हैं उस समय। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कैश। अब कैश में देखिए आपके सारे एक्सपेंस आएंगे, यानी कैश हमारा था 11,70,000, इसमें हमने 50,000 जो हमने परचेजेस के लिए पे किया वो लेस हो जाएगा क्योंकि हमने पे किया है। 80,000 हमारा सेल्स का हमें रिसीव हो रहा है, तो वो हम ऐड कर लेंगे, रिसीव वाला ऐड, पेमेंट वाला लेस। ठीक है, एंड 15,000 जो एक्सपेंसेस पे करे वो भी हम लेस कर देंगे क्योंकि वो भी पेमेंट है। पेमेंट्स विल बी डिडक्टेड एंड रिसिप्ट्स विल बी एडेड। ठीक है, सो 1170 के अंदर 50,000 लेस हुआ, 80,000 ऐड हुआ एंड 15,000 ऑफ एक्सपेंसेस इज डिडक्टेड। तो टोटल इफेक्ट हमारा इसका कितना आ गया? 11,85,000। ये हमारा इसका इफेक्ट आ गया। क्लियर है ये? इंश्योरेंस हमारी थी 1,88,000, ये एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इससे रिलेटेड। बैंक लोन इंटरेस्ट, यानी लोन का जो इंटरेस्ट है वो डेबिट में आता है, एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो। सो लोन विल बी शोन इन क्रेडिट and interest will be shown in debit as an expense. Then other expenses हमारे 6,02,000 के थे इसी के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ वेजेस अलग से नहीं दिया हुआ,
सो जो वेजेस वाला हेड है वो आपका इसी एक्सपेंसेस में एड अप हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस हमारे 15,000 से बढ़ गए, इंक्रीज हो गए. सो 6,02,000 प्लस 15,000 दैट इज 6,17,000. ओके, एंड प्लांट एंड मशीनरी 5 lakh बिकॉज नो एडजस्टमेंट इज देयर रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी. सो इसके अंदर आपकी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई, जिसमें हमने परचेज को भी एडजस्ट कर दिया, डेटर्स क्रेडिटर्स दोनों कर दिए, सेल्स भी कर दिया, कैश भी कर दिया और अदर एक्सपेंसेस भी कर दिया. ठीक है, एंड टोटल हमारा अब क्या आया है 54,52,000. 54,52,000. तो अब ये दोनों साइड टोटल सेम ही आना चाहिए और ये सेम ही आ रहा है. सो आई थिंक ट्रायल बैलेंस इज टैलिड, दैट मीन्स ये सारे इफेक्ट्स हमने इसमें शो कर दिए. एंड आपको इसमें जो मार्क्स मिलते हैं वो इन्हीं एडजस्टमेंट्स के बेसिस पे मिलते हैं, यानी जहां जहां एडजस्टमेंट है उसके बेसिस पे आपको नंबर मिल जाएंगे. जो एडजस्टमेंट आप गलत कर देंगे उसके नंबर डिडक्ट हो जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, hope you understood how you will deal with the additional information in the trial balance, and I made my point very much clear. So hope you like the video and share it with your friends if you really liked it. And students, keep watching my channel on regular basis. See you soon in my next video. Till then, bye bye students.